Hello students, welcome back to the EduExcel channel, an e-learning platform. This is your biology teacher Abdul Ahad, and today I am here with a great offer that is going right now in the EduExcel. As you can see in the special offer that we are offering 15% discount on our offline courses as well as 24% discount on our online batches that is going to be valid till 1st of January. So it's a great opportunity for you to grab it. Okay, it's not end just up to here. We also have a surprise that is going to be revealed on 31st of December, that is for New Year. So you should grab this opportunity as well as you should wait for the great surprise that is going to be revealed on the eve of the new year. That is going to be very big surprise. Okay, so as I have discussed about the offers, so let me also discuss about the courses that we are offering. Here we have our online courses. We have class 6th, 9th as well as 11th entrance batches that has the online fees of 999, 1999 as well as 2999. Okay, and along with the online courses, we also have online batches for the same classes. Okay, Ilme Aghaz, Uruj, Vijay, with these respective fees. Understand? So it's a great opportunity that on those fees we are offering the current offers here. So it's a great opportunity for you to just grab them. So as you know, students, that we were discussing about the chapter. We have already discussed the chapters of class 9, cell as well as crop production and management. So today I bring a class to you about the PYQs that has been discussed in the last 10 years from the chapter cell. So we are going to discuss this today. We are going to see the questions and we are going to see the solutions as well as the year in which it has been repeated. So let's start our class from that. Okay. So this is the first question that has been discussed in the year 2022. Okay. So the first question is unit of inheritance in living organism is. Okay. So it is talking about the unit of inheritance. So before going to the question directly, first of all, let me explain you what is the meaning of inheritance. We have already discussed it about in our class, but let me explain it here again. Inheritance is the property. Which property? It is the property of an organism to transfer its characters to the offspring. It means what? Sometimes when whatever happened, some people say that when you go to them and you talk to them, okay, when you met them first time, they said कि हाँ तुम्हारी आँख जो है वो it is like अब्बा and तुम्हारे बाल जो है it is like अम्मा. Okay, so what happened here? यानी कि हमारे अंदर कुछ बच्चों कैरेक्टर्स जो होते हैं वो कुछ हमारे फादर से आते हैं, कुछ हमारे मदर से आते हैं. तो ये कैरेक्टर्स जो है हमारे अंदर जब ऑफस्प्रिंग्स के अंदर आते हैं, उस प्रॉपर्टी को बेटा क्या कहा जाता है? दोस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस. और ये इनहेरिटेंस की यूनिट बच्चे क्या होती है? जीन्स होती है. ओके, इफ यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ऑप्शंस, न्यूक्लियस क्या होता है बेटा? सेल होता है. सेल का जो मेन पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस. और इनसाइड दैट न्यूक्लियस what happened? Chromosomes are basically chromatin materials are present, and when the cell is going to divide, those chromatin materials are going to convert it into chromosomes. On these chromosomes some sets of genes are present, and these genes are responsible for the inheritance of character. Okay, so here the unit of inheritance will be gene. Understand? Okay, let's move to the next question. That nuclear membrane is absent in. First of all, let me explain you what is the meaning of nuclear membrane. So there is a cell, okay, and inside the cell nucleus is present as we have just discussed right now. ये न्यूक्लियस के ऊपर, ये न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है बेटा, जो साइटोप्लाज्म से उसको अलग कर रही होती है, दैट पर्टिकुलर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. अंडरस्टैंड? ये होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. अब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में पूछ रहे हैं कि कहां पर एब्सेंट होती है, यानी कि किन के अंदर नहीं होती है. तो बेटा प्लांट सेल के अंदर भी होती है, एनिमल सेल के अंदर भी होती है. ये हम लोगों ने सेल के बारे में पढ़ा था कि सेल दो तरीके के होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल. और उन दोनों के बीच में मेन डिफरेंस जो था वो यही था कि उनके जो न्यूक्लियस होता है बच्चे, वो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है. न्यूक्लियस आपका जो होता है, ओके. तो ऐसे जो यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होंगे,
और यू कैन से प्रोकैरियोट्स जो होंगे, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि जिनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल्स होता है, वो कौन से होंगे बेटा? उनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होगी. सो हियर वी हैव ब्लू ग्रीन एल्गे व्हिच इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल. तो इसके अंदर मेम्ब्रेन नहीं होगी. दूसरा क्या है? एनिमल सेल. तो एनिमल सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है क्योंकि वो यूकैरियोटिक सेल होता है. प्लांट सेल भी वही है, और ह्यूमन सेल की अगर बात कर लिया जाए तो वो एनिमल सेल में ही आ जाएगा. तो बात एक ही है. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द थर्ड क्वेश्चन हियर वी हैव बैक्टीरिया आर डैश ऑर्गेनिजम्स. बैक्टीरिया कैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं? उनके अंदर यहां पर क्या आ रहा है? वैरायटी ऑफ सेल्स के बारे में बात हो रही है. मल्टी सेलुलर यानी कि बहुत सारे सेल्स होते हैं. ट्राई सेलुलर 3 सेल के बने होते हैं. बाई सेलुलर 2 सेल के बने होते हैं. या यूनिसेलुलर एक सिंगल सेल का. तो बैक्टीरिया आर द सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, यानी कि ये क्या होते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं. अंडरस्टैंड? इसके बाद क्या बात करी जा रही है बच्चे? फोर्थ क्वेश्चन इज अबाउट जीन्स आर लोकेटेड इन. अभी बिल्कुल बात करी हम लोगों ने कि जीन्स कहां पे प्रेजेंट होती हैं? इनसाइड द न्यूक्लियस क्रोमोसोम्स होता है. क्रोमोसोम्स के ऊपर इस तरीके से जीन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस चीज के? इनहेरिटेंस के रिस्पॉन्सिबल होते हैं बेटा. तो कहां पे प्रेजेंट होंगे? क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट होंगे. अगर हम लोग ऑप्शंस की बात करें, प्लास्टिड्स. प्लास्टिड्स क्या है? प्लास्टिड्स आर द सब्सटेंसेस दैट आर प्रेजेंट ओनली इन द प्लांट सेल्स. उनका फंक्शन भी हम लोगों ने क्लास में डिटेल में देखा था. साइटोप्लाज्म क्या होता है? सेल के अंदर जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है. लाइसोसोम के बारे में पढ़ा था, जो कि सेल की जो है वो चीजें जो खराब हो जाती है उनको चीज को डिस्ट्रॉय कर देता है. सुसाइड बैग भी जिसको कहा जाता था. ये सारी चीजें हम लोगों ने बेटा डिस्कस करी थी क्लास में डिटेल में. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Here we have cellulose is made up of. सेल्यूलोज किस चीज का बना होता है? सेल्यूलोज प्लांट्स की लीफ के अंदर प्रेजेंट होता है बेटा. इसकी क्या बात हो रही है? ये जो किस चीज का बना होता है? ग्लूकोज यूनिट्स आपकी जो होती हैं उनका मिलकर के बना होता है. छोटी छोटी ग्लूकोज यूनिट एक साथ मिल के क्या करती हैं? वो एक बड़ा यूनिट बनाती है. दैट बड़ा यूनिट इज कॉल्ड एज सेल्यूलोज. अंडरस्टैंड? नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6. Okay, here the question asks that which of the following cell does not possess nuclear membrane. वही चीज रिपीट कर रही है, यानी कि क्वेश्चन की लैंग्वेज सिर्फ बदल दी गई है. अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन. कि क्वेश्चन कैसा था? अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसमें एब्सेंट होती है. यहां पे क्या बोल दिया? कि डज नॉट पोजेस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. बस लैंग्वेज चेंज करके ईयर डिफरेंट कर दिया है. ये 2019 में आया, वो पहले आया था बच्चों. तो यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड अबाउट इट. यानी कि पीवाईक्यूज जो है इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि उसमें चांसेस होते हैं क्वेश्चन के रिपीट करने के. तो जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं मिस होने चाहिए. एक एक क्वेश्चन बिल्कुल सही होना चाहिए. ओके, सो यहां पे क्या हो जाएगा? चीक सेल यानी कि ह्यूमन सेल. एनिमल सेल है तो एनिमल सेल क्या होता है बेटा? यूकैरियोटिक सेल होता है, तो इसमें तो प्रेजेंट होगी. दूसरा अनियन सेल है. अनियन सेल क्या है बेटा? प्लांट सेल है, ये भी यूकैरियोटिक सेल होता है, इसके अंदर ही प्रेजेंट होंगी. थर्ड वही ऑप्शन आ गया हमारे पास, ब्लू ग्रीन एल्गे, तो इसके अंदर नहीं होती है. अंडरस्टैंड? अमीबा की अगर हम लोग बात करें तो अमीबा क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी कि एक ही सेल है, वो पूरा ऑर्गेनिज्म का काम करता है. रेस्पिरेशन भी वही कर रहा है, न्यूट्रिशन भी वही कर रहा है, एक्सक्रीशन भी कर रहा है, रिप्रोडक्शन भी वही कर रहा है. सारे प्रोसेस एक ही सेल कर रहा है. दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. नॉट ओनली अ सिंगल सेल, यानी कि खाली सेल नहीं है वो एक सिंगल सेल पूरी ऑर्गेनिज्म की तरह काम कर रहा है. अंडरस्टैंड? ओके, नेक्स्ट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. All living cells and many of the tiny organelles इंटरनल टू द सेल आर बाउंडेड बाय थिन मेम्ब्रेन्स. यानी कि क्या कह रहे हैं? कि जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, सेल के अंदर जितने भी छोटे छोटे ऑर्गेनल्स होते हैं, न्यूक्लियस हो गया आपका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारे ऑर्गेनल्स बच्चे जो हैं वो कह रहे हैं थिन मेम्ब्रेन से जो है वो कवर होते हैं. वो मेम्ब्रेन किस चीज की बनी हुई होती है ये पूछा जा रहा है. तो वो मेम्ब्रेन बच्चे किस चीज की बनी हुई होती है? वो फॉस्फोलिपिड की बनी हुई होती है. अगर हम लोग खाली सेल मेम्ब्रेन की ही बात करें, सबसे बाहर की जो मेम्ब्रेन होती है सेल की, दैट इज कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन. ये सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है बेटा? फॉस्फोलिपिड की बनी होती है. उसके अंदर कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं. इसका पूरा स्ट्रक्चर दिया गया था, ठीक है ना? इसको आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन इससे कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है. तो इसका स्ट्रक्चर जो दिया गया था वो एक मॉडल कहलाता है, दैट इज कॉल्ड एज फ्लूइड मोज़ेक model. This particular model has been given by two scientists named as Nicholson and Singer.
ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये पर्टिकुलर मॉडल दिया था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जिसमें उन्होंने बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी जो होती है वो किस चीज की बनी होती है बच्चे, वो हमारी बनी हुई होती है फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन की। फॉस्फोलिपिड्स की भी दो लेयर होती है, और किस तरीके से कैसे होती है, यू आर गोइंग टू स्टडी इट इन हायर क्लासेस इंशाल्लाह। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर वी हैव प्लास्टिड्स। ओके, कि प्लास्टिड्स आर फॉर्म्ड इन, तो प्लास्टिड्स बेटा क्या होती हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है किसका, प्लांट सेल का। प्लांट सेल के अंदर प्लास्टिड्स प्रेजेंट होती हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लास्टिड्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। ऐसी प्लास्टिड्स, ये प्लास्टिड्स का काम क्या होता है, कलर देने का, यानी कि ऐसी प्लास्टिड्स जो होती हैं जिनके अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है, दैट पिगमेंट इज कॉल्ड एज क्लोरोफिल। जिनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है उनको क्या कहते हैं, ऐसी प्लास्टिड्स को कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। ओके, ये क्लोरोप्लास्ट के ही अंदर जो है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। अंडरस्टैंड बच्चों। दूसरी प्लास्टिड्स हम लोगों ने पढ़ी थी, वो क्या करती हैं बेटा, वो जैसे टोमेटो है, टोमेटो का कलर जो है वो रेड कलर का है, ब्रिंजल का जो है वो कलर जो है वो पर्पल कलर का है, ये सारे कलर्स उनको प्रोवाइड करती हैं। तीसरी जो होती है वो ल्यूकोप्लास्ट, वो क्या करती है बच्चे, वो स्टोरेज का काम करती है। अंडरस्टैंड। तो ये किसके अंदर प्रेजेंट होती है, प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। अदर ऑप्शंस क्या, एनिमल सेल के अंदर ये नहीं प्रेजेंट होती है। इसमें बोथ की बात आ रही है, प्लांट एनिमल, तो प्लांट तक तो ठीक था, लेकिन एनिमल ये ऑप्शन भी गलत हो गया, नन ऑफ दीज नहीं। तो प्लांट सेल के अंदर ये प्रेजेंट होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस जो है वो साइटोप्लाज्म से किस तरीके से सेपरेटेड होता है, किस चीज से सेपरेटेड होता है, तो हम लोगों ने अभी बार बार स्ट्रक्चर देखना है सेल का, कि इस तरीके से सेल का स्ट्रक्चर होता है बच्चे, और यहां पे न्यूक्लियस होता है, और ये एक मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस के बराबर में, दैट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, तो न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अगर हम लोग प्रोटोप्लाज्म की बात करें तो साइटोप्लाज्म अलॉन्ग विद द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन की बात करें अगर, तो सेल मेम्ब्रेन ये बाहर का पार्ट जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन कहलाता है, तो ये भी नहीं हो सकता। सेल वॉल क्या होता है, प्लांट सेल की स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होती है कि सेल मेम्ब्रेन के अलावा उसके बाद इसके पास एक और लेयर होती है बाहर की, दैट लेयर इज कॉल्ड एज सेल वॉल। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। अंडरस्टैंड, प्रोटोप्लाज्म नहीं हो सकता, तो हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है कि वी हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर दैट। अंडरस्टैंड। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट सेलुलोज इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ व्हाट। अगेन द क्वेश्चन हैज बीन रिपीटिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, कि मैंने ये क्वेश्चंस दोबारा दोबारा रिपीट करवाए हैं, क्वेश्चंस हटाए नहीं हैं, क्योंकि अभी करा पूछा था, 2015 में भी पूछा है, इससे पहले भी पूछा था। ओके बच्चों, देखो यहीं पे 2020 में 5 साल के बाद ही ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो गया। तो यहां पर क्या भी पढ़ा था हम लोगों ने कि ग्लूकोज यूनिट का होता है, तो यहां पे भी सेल्यूलोज किस चीज का बना होता है बेटा, ग्लूकोज का बना होता है। अंडरस्टैंड। तो ये पुराने क्वेश्चंस की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने पुराने पीछे क्वेश्चंस जो होते हैं पीवाईक्यूज के, तो एक एक बिल्कुल सारी चीजें जो है वो सही होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि इस चैप्टर से जो है वो पिछले 10 साल में यही इतने 11 क्वेश्चंस आए थे, तो इतना इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट अगर देखो तो 10 साल में 11 क्वेश्चंस, अगर एवरेज निकाले हम लोग तो हर साल एक क्वेश्चन से आ रहा है। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, इसी वजह से मैंने कहा था, जब मैं सेल पढ़ा रहा था तो मैंने ये बात कही थी कि बच्चे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एज पर द कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि हर साल एक क्वेश्चन आ ही रहा है, और एक क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है। एक क्वेश्चन आपको अंदर ही पहुंचा सकता है, और एक क्वेश्चन की वजह से आप जो है रह भी सकते हैं। तो रहना कहीं नहीं है, सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और बिल्कुल सही करना, ताकि बिल्कुल पूरी तरीके से हम लोग जो है उस चीज को क्वालिफाई कर सके। ओके, द लास्ट क्वेश्चन इज अबाउट प्रोप्लास्टिड्स आर फाउंड इन। अब प्रोप्लास्टिड्स, क्या प्लास्टिड्स की बात हो रही है, प्लास्टिड्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि कहां होते हैं, ये प्लांट सेल में होते हैं, फोटोसिंथेसिस के उसमें हेल्प कर रहे थे, भी हम लोगों ने देखा कि क्लोरोप्लास्ट इस तरीके से हेल्प कर रहा था। ओके, तो सबसे पहले क्या आ रहा है, प्लांट सेल आ रहा है। ठीक है, तो ये हो सकता है। दूसरा क्या कह रहा है, नॉन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया सेल, यानी कि बैक्टीरिया सेल जो होते हैं वो दोनों तरीके के होते हैं। बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं बच्चों, हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक अगर होते तो उनके अंदर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, लेकिन यहां पे क्या कह रहे हैं, नॉन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, तो ये चीज नहीं हो सकती। थर्ड इज एनिमल सेल, एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट ही नहीं होता है प्लास्टिड्स, क्यों, क्योंकि वो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। बोथ प्लांट एंड एनिमल, प्लांट ठीक था लेकिन एनिमल नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन भी गलत है। लास्ट ऑप्शन हमारा जो बचा प्लांट सेल, यानी कि प्रोप्लास्टिड्स भी हमारी जो है कहां प्रेजेंट होती है, प्लांट सेल में होती है। अंडरस्टैंड बच्चों। सो दिस इज इट फॉर टुडे।
यही मुझे डिस्कस करना था आपसे, क्योंकि मैंने सेल चैप्टर पढ़ा दिया था, उसके पीवाईक्यूज मैंने कहा था कि मैं डिस्कस करूंगा, तो वो यही पीवाईक्यूज थे जो हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। और हर साल एक क्वेश्चन आता है, इसलिए चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके पीवाईक्यूज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरीके से आपको पीवाईक्यूज में अगले चैप्टर का भी लाऊंगा, और इस तरीके से जितने भी चैप्टर्स हैं उसके पीवाईक्यूज को हम लोग एक एक करके डिस्कस भी करेंगे। और इसी तरीके से आप लगे रहिए, आपके व्यूज को देख करके लगता है कि बिल्कुल आप क्लासेस अटेंड कर रहे हैं रेगुलरली, और अच्छे से इसी तरीके से करते रहिए। और जो भी आपके डाउट्स है, जो भी क्वेरीज, आप उसको चैट में लिखिए, वी विल रिस्पॉन्ड टू दैट, अंडरस्टैंड। और चलते चलते यही कहूंगा कि क्लास चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और अपने दोस्तों में शेयर करिए, ताकि सबको जो है इस तरीके से पढ़ने का मौका मिले। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।